नमस्कार, शुभ संध्या, good evening. Thank you so much for joining in. So much love, so much enthusiasm that you all show, that I also look forward to such sessions. Trust me, it's a lot of learning together. Today's topic, like I said, this is what Guruji has been teaching since day one. His spirituality is very different. He doesn't believe in quoting from Vedas and Upanishads and Gita and all that. He quotes from very life, whatever is applicable to our life, and which can be put into practice. And he has always claimed that this is what he is here for, to teach practical spirituality, not that heavy spirituality of scriptures which, like, now thousands of people have gone through and are debating all the time. We can waste entire lifetime debating on Gita and various scriptures of all the religions, but trust me, we will not go anywhere till we put all that into practice. And somewhere that sense of uh, knowledge starts coming in the more you read. And time changes, the knowledge has to become applicable to the current time, and it has to be explained in a more contemporary way. And that's exactly what Guruji has been doing. He has made the entire spiritual knowledge so interesting and so applicable and so practical, that each session that we are enjoying, you know that okay, this you can implement and this you should do so that you enjoy this life. He has always taught us a very practical way of living life. He has never advocated any rules or regulations or have been very strict with norms that we have to follow. He said few things that we have to keep in mind, and that all is spirituality. He said just watch your mind, just remain pure at the level of mind. Rest of the things are fine. Your life is fine, your lifestyle is fine, your diet is fine, as long as mentally you are fine. So this is the practical spirituality simplified version today. I just pray to Guruji to give me correct wisdom and buddhi to explain his knowledge. I'm not worthy of that, but I'll try my best, and I just surrender to him to speak through me so that you all get what he is expecting us to understand. The entire thrust, writing, guidance and teaching has always been the practical aspect of spirituality. I have spent time. All those who are new, they can, while reading this book only, they will realize what out Guruji wants to give towards spirituality and towards our life. Human life, he said, the entire spiritual life can be summed up how you have lived your life. And that is what his version of spirituality is. How you live your life. Of course, it's good to read scriptures, philosophy and similar inspirational material. He is not against it. Please don't take any other meaning. This broadens our perspective, gives us hope, and to some extent our intellect. मैंने हिंदी में मुझे निरूपण करना है, मैं इंग्लिश में ही शुरू हो गई, तो मैं बस थोड़ा चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकूं। गुरुजी ये बोल रहे हैं कि आज तक उन्होंने जो भी सिखाया है, समझाया है, बोला है, वो हमेशा व्यवहार में जो काम आता है वो अध्यात्म उन्होंने सिखाया है। वो ये बोल रहे हैं कि मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, वो कोई विरुद्ध नहीं है कि आप स्क्रिप्ट ना पढ़े या किसी वेद उपनिषद या किसी फिलोसॉफिकल बुक्स का अध्ययन ना करें। वो ये कहते हैं कि उनका ये अपना एक्सपीरियंस है या फिर एक ऑब्जर्वेशन है, एक उन्होंने देखा है, पहचाना है कि कितनी भी पुस्तकें हम लोग पढ़
पूरी लाइब्रेरी चाहे हम पढ़ डालें इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन वो सारा यहाँ पे रह जाता है, दिमागी तौर पे भी रह जाता है, सेरेब्रल लेवल पे रह जाता है, वो दिल में नहीं उतरता, वो हमारे वो तो उस तरह की आध्यात्म वो नहीं सिखाते जो हम लागू न कर पाए, जो हम अपने लाइफ पाए, उस तरह की आध्यात्म गुरुजी नहीं सिखाते. दिस ह्यूज given in various scriptures rarely percolate down to the shop floor level of living daily life. वो ये बोल रहे हैं कि मोटी मोटी बातें जो इन सारे ग्रंथों में, इन सारे पुस्तकों में फिलॉसफी की या आध्यात्म की जो लिखी होती है, वो बहुत कम बार हमारे जीवन के लेवल पे आके खरी उतरती है. वो सुनने में बोलने पे भी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये मौका आता है कि उसको हम लाइफ के ऊपर लागू कैसे करें, वहां पे जाके फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह. सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आप कितनी सारे चैनल्स देखते होंगे, आप कितने सारे लोगों को आध्यात्म पे बात करता हुआ देखते होंगे. बड़े बड़े लोग हैं, मेरी तो औकात भी नहीं है उतनी, लेकिन जितना मैंने गुरुजी से जाना है मैं आपके सामने रख रही हूँ. वो बोलते हैं कि गुस्सा मत करो, जेलसी मत करो, ये मत करो, वो मत करो. ये सभी हम लोग जानते हैं, नई बात कोई नहीं बताता है. गुरुजी बोलते हैं अध्यात्म में कुछ नई बात है ही नहीं. जो 1000 साल पहले गुरु नानक देव ने बताई थी, वहीं कबीर ने बताई, वहीं ओशो ने बताई, वहीं आज के जो आध्यात्मिक गुरु है वहीं वो भी वहीं बता रहे हैं. तो ये कोई नई बात हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन ये समझ के भी ये लागू कैसे किया जाए. ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, आता है, अपने लाइफ में एप्लीकेबल कैसे बनाऊं. यहाँ आके गुरुजी का अध्यात्म बहुत चेंज होता है. वो उपदेश से ज्यादा उपाय देने में मायने रखते हैं. दिन भर भाषण चलता रहता है. यहाँ पे तो चैनल्स डेडिकेटेड है जो आपको समझाएंगे दिन भर में ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसे करना होता है. लेकिन भाई ऐसा ना हो ये मैं कैसे कर पाऊं. मुझे सब समझ में आता है कि झूठ बोलना नहीं है, चोरी नहीं है, लोभ अच्छा नहीं है, लेकिन वो मैं एप्लीकेशन में कैसे लाऊं, मेरा बस नहीं चलता मेरे मन के ऊपर. वहां पे आके प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है. तो गुरुजी जो बताते हैं वो आप एप्लीकेबल कैसे कर सकते हो, वो सारे उपाय के सहित हम, इसीलिए ये सारी बातें हम सुनते नहीं. So I always compare this situation to a surgeon who has read every available book on anatomy and surgery but has never held a scalpel in his hand. तो हमारी हालत ये पुस्तक पढ़ पढ़ के ऐसी हो जाती है, सर्जन जैसी हो जाती है. पुस्तक के तौर पे सब कुछ मालूम है उसको, पूरी एनाटॉमी मालूम है, कैसे सर्जरी करनी है मालूम है, लेकिन हाथ में कभी स्कैल्पेल या फिर डॉक्टरों वाला जो छोटा सा चाकू नहीं बोल सकते, स्कैल्पेल ठीक है, वो ही उठाया नहीं है तो सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी. तो जब तक जो भी आपने पढ़ा है एप्लीकेशन में यानी एक्सपीरियंस में नहीं आता है, तब तक उसकी वैल्यू पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होए. तो ये तो सदियों से वही वही बोला जा रहा है, लेकिन वो उतरे कैसे, वो हमारे जहन में, हमारे दिल में उतरे कैसे. सो in this article which is titled Practical Spirituality Simplified about a simple spiritual practice that can be done by anybody. तो जैसे बताने में ना विश्वास रखते, सिर्फ उपदेश में नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ. 90% बातें चली जाती है, थोड़ा बहुत हम लोग एप्लीकेशन में ला पाते हैं. तो यहाँ पे इस चैप्टर में गुरुजी बोल रहे हैं कि एक ऐसी आध्यात्मिक आपको साधना वो दे रहे हैं जो कि आप आराम से बिल्कुल इजीली आपके लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है. द आइडिया हियर इज टू सी सम रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स रादर देन अ मियर एडिशन टू योर मेमोरी बैंक. गुरुजी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव हो, आपकी सोच में बदलाव हो, आपके व्यवहार में बदलाव हो, ना कि सिर्फ मेमोरी के तौर पर या बखान करने के लिए आप ये बोलो कि अरे मैंने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया है, मैं मुझे तो ये मुखोद्गत है, ये तो मैं बिल्कुल जैसे मेरे जबान ही याद है. क्या फायदा अगर आप उसमें से वो प्रैक्टिस में न ला पाओ और बस वो मेमोरी बैंक में यानी हमारे जहन में बस एक ठूस एक और किताब ऐड हो गई. तो ऐसी वाली प्रैक्टिस से कोई फायदा नहीं है. इससे अच्छा है कि आप थोड़ा ही पढ़ो
लेकिन वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से उपाय हम लोगों को बताया है। गेट कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, यानी कहीं किसी के साथ तो हमें कनेक्शन बनाना है और वो कनेक्शन मेंटेन रखना है। तो देखते हैं किसके साथ हमें कनेक्शन बनाना है, वो संबंध बनाना है जो हमें बरकरार रखना है। A human being is such a social animal that we touch with each other. And now, with the kind of gadgets she offers, it's difficult not to stay connected even if you want. तो यहाँ पे गुरुजी ये बोल रहे हैं कि हम लोग सोशल एनिमल, हम सामाजिक प्राणी हैं और हम एक दूसरे के साथ संपर्क रखना हमें अच्छा लगता है। और आज तो ये इतना इजी हो गया है, इतने सारे गैजेट्स है, इतने सारे उपकरण हैं कि हम एक दूसरे से आसानी से संपर्क में रह सकते हैं। इतना संपर्क ज्यादा हो गया है, एकांत भी चाहते हो तो भी एकांत मिलना मुश्किल हो, इतना ज्यादा संपर्क का ये। बट हैव यू एवर कंसिडर्ड constant and immediate connection with divinity? Probably not, because you thought it would be too difficult, too time consuming, or thanks to a truckload of misconceptions, you surmised you simply would not qualify for such a spiritual activity. तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि जिस आराम से, जिस उत्साह से आप एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं, क्या उस उत्साह से कभी अपने भगवान से, ईश्वर से संपर्क करने की कोशिश की है या संपर्क बनाना चाहा है? या फिर शायद आपको लगता होगा कि ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, यहाँ पे इंसान से संपर्क रखना मुश्किल है, भगवान से कैसे संपर्क बनाए? या फिर आपको लगता है कि इसमें शायद ये ना बड़ा ही कठिन होगा या फिर मुश्किल होगा या फिर क्या कहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारा वक्त जाएगा, भगवान से बात करनी है ना, वो तो इतनी जल्दी जल्दी में तो नहीं हो सकती, उसको शायद बहुत सारी तैयारी लगे, फिर भगवान से, ईश्वर से ना। फिर बहुत बार हमें ये बताया जाता है कि आप इतने तुच्छ हैं, हम लोग इतने तुच्छ हैं कि आप ईश्वर से संपर्क करेंगे, आपकी लेवल क्या है? ये संदेह हमारे मन में डाला जाता है। बड़े बड़े लोग नहीं, हमारी पात्रता नहीं है डायरेक्ट ईश्वर से संपर्क करें। तो इन सब के कारण क्या हो जाता है, जिससे सच में संपर्क रहना चाहिए या बनना चाहिए, उससे ऐसे संपर्क बन जाते हैं जिससे कभी ना कभी दुख दर्द आता ही आता है। सिर्फ ईश्वर से ही ऐसा संपर्क कभी नहीं, ना हमें बताया जाता है बचपन से, या फिर उसका मूल समझते समझते सारी उम्र निकल जाती है। So what I am going to teach you is how to tap into the cosmic consciousness, or what is commonly referred to of God. तो आप जी बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक ऐसी पद्धति हम लोगों के लिए वो समझा रहे हैं कि जिसके द्वारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो भगवान, आप उससे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। The reason I have used this phrase mind of God is because trying to explain cosmic consciousness unnecessarily involve abstract philosophical terminology, thereby defeating the purpose of this article. गुरुजी बोल रहे भगवान का मन, ये शब्द प्रयोग किया है यहाँ पे कि अगर वो इसके मायने समझाना क्लिष्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा ना कठिन हो जाएगा समझने के लिए, और मेरा अगर उद्देश्य है तो उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट में अगर करके आपको बताऊं तो उनका उद्देश्य ही सफल नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये सिंपल टर्म, भगवान का मन, जैसे हमारा मन होता है वैसे ही भगवान का मन। Complicating matters, let me assure you that every human is always connected to cosmic consciousness. ये कितनी धीरज देने वाली बात है, ये कितनी हिम्मत देने वाली बात है कि हमारा संपर्क हमेशा रहता ही है। शायद जागृति या हमारे ना जागृति के तौर पर हमें महसूस ना होता हो, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर, अंतर्मन के लेवल पर ये संपर्क हमेशा से ही रहता है। अगर ये नहीं रहता तो हम हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता।
but we are on standby mode, just like your cell phone is switched on but is in standby till you make or receive a call. तो गुरुजी बोलते हैं ये जो कनेक्शन है वो जैसे कि एक स्टैंड बाय मोड पे चला गया है। जैसे हमारा फोन, अगर उसको आपने किसी को कॉल करने के लिए यूज नहीं किया या फिर किसी को कॉल अगर आपको आता नहीं है तो कैसे वो साइलेंट पड़ा रहता है, बस ये कनेक्शन इसी तरह साइलेंट पड़ा है। न उधर से कोई संपर्क हो सकता है क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं की, तो हमारे तरफ से भी कोई संपर्क नहीं है, तो ये स्टैंड बाय मोड पे चला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संपर्क टूट गया है। आप कभी भी फोन उठा के नंबर डायल करें तो वो फोन जुड़ जाता है। What I am trying to say is you are not about to undertake Herculean mental gymnastic here. Believe it or not, tapping into the universal consciousness is as simple as using speed dial on your cell phone. तो गुरुजी बोलते हैं ईश्वर से संपर्क करना यानी कोई बहुत कठिन या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न काम होगा, तो ये बात नहीं है। इनफैक्ट वो बोलते हैं वो इतना सिंपल है, इतना सहज है कि जैसे स्पीड डायल फैसिलिटी होती कि आपको बस एक बटन दबाना है और कॉल जुड़ जाता है, उस तरह से भगवान से हमारा संपर्क हो सकता है। इतना सरल है, इतना ना इजी है। There are innumerable ways of connecting with the universal mind, but the technique I have given below is quick, simple, and something I use all the time. But first, you must fully understand that the mind of the creator is something unique. तो यहाँ पे जो गुरुजी जो पद्धति हमें दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि वो तो बड़ी सीधी सी है और एकदम आप ना जल्दी आपका संपर्क प्रस्थापित हो सकता है। ये उनकी खुद की यूज की हुई है, वो कभी भी वो उपदेश नहीं देंगे जो उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया हो। दैट इज अ साइन ऑफ अ रियल गुरु। वो कभी ऐसी चीज आपको उपदेश या आपको फॉलो करने के लिए नहीं बोलेंगे जो उन्होंने खुद ने ना की हो। तो ये पद्धति उन्होंने स्वयं ये उपयोग में लाई हुई है, उन्होंने ये जांची परखी है, एक्सपीरियंस की है, तभी हम लोगों को ये दी है। वो बता रहे हैं कि ईश्वर का मन जो होता है वो थोड़ा सा ना उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन जैसा हम समझना चाहेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने आइडिया दिए कि किस तरह से अंदाजा हम बांध सकते हैं कि ईश्वर का मन कैसे होता है। इट इज एन ऑल परवेसिव omnipresent reality that envelops all creation including planet earth and everything on it. तो ये एक ऐसी शक्ति है, एक ये ऐसी चीज है जो हर जगह पे उपस्थित है। पूरे जितना भी ये सीन यूनिवर्स है, जितना भी हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ये विश्व कितना बड़ा है, वहां से लेकर पृथ्वी तक हर चीज इसमें आती है, इसके अंदर है, इसमें लपेटी हुई है या इसमें समाविष्ट है। Also, strange as it may sound, every single human mind is wired into this consciousness, whether in standby mode or active mode, regardless of the level of spiritual evolution it has achieved. ये कितनी सुंदर बात बताई है गुरुजी ने कि चाहे आपको ये करने हो ना हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई है या नहीं हुई है, आप अवेयर हो या अनअवेयर मोड पे हो या पे हो, ये कनेक्शन हमेशा ऑन रहता है। आपको आपकी तरफ से स्विच ऑन करना है, उधर से तो कनेक्शन हमेशा ही ऑन रहता है। तो जितने भी मनुष्य प्राणी पृथ्वी पे आज है, अंदाजे से 600 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, जितनी भी आबादी है उससे भी ज्यादा शायद, लेकिन हर एक इंसान का दिमाग, हर एक इंसान का मन उस वैश्विक शक्ति से जुड़ा हुआ है। हम कभी भी कट नहीं होते हैं, हम कभी भी स्नैप नहीं होते उस कनेक्शन से। हम यूज नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन उधर से ईश्वर से ये कनेक्शन हमेशा बना रहता है और हर एक से बना रहता है। वहां पे कोई भेदभाव नहीं है।
वहां पे ये नहीं देखा जाता कि आप कितने प्योर है नहीं है, आपकी प्रगति कितनी हुई, आप आदिवासी है या बहुत ही कल्चर्ड व्यक्ति है, आप झूठ बोलने वाले हैं या बहुत ही प्योर व्यक्ति है, आप जैसे भी है वो कनेक्शन है, बना हुआ है और वो कनेक्शन रहेगा रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। साधना करता है भगवान सिर्फ उन्हीं से संपर्क करते हैं, नहीं, उनके लिए तो हर कोई उनका बच्चा है, उनके लिए तो हर कोई उनका ही कहते क्रिएट को रखे, कैसे वो एक को पास लाए और दूसरे को निग्लेक्ट करे, ये नहीं हो सकता। यही तो ईश्वर का मन है जो हम लोगों से अलग तरह से काम करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटली एक्नॉलेज दैट दिस कॉन्शियसनेस प्रेजेंट एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट विद इन इट्स एम्बिट। अब अगर सोचने की बात हुई तो ईथर भी हम लोग परसीव नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन हवा जैसे हर जगह है, हमारे आसपास है, हर कोने में फैली हुई, वो दिखती नहीं है लेकिन वो उपस्थित होती है। समझिए कि बस भगवान का जो अस्तित्व है उस तरह से आपके आसपास है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसको इस ऊर्जा का स्पर्श नहीं हुआ है या ये ऊर्जा से दूर है। तो इस तरह से ऑल परवेडिंग, हर जगह में व्याप्त ऐसी ये ऊर्जा है। नाउ फॉलो दिस सिंपल स्टेप्स। अभी ये मेडिटेटिव प्रोसीजर है, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ये मेडिटेटिव प्रोसीजर मेरे डायरेक्शन के अंडर करें, आपको बहुत ही सुंदर अनुभव आ सकता है। तो आई विल जस्ट गिव यू 2 minutes टू टेक अ प्रॉपर सीटिंग एंड लेट्स डू दिस एज अ मेडिटेशन। लेट्स गेट कनेक्टेड। ऊपर ऊपर से रूखी सूखी बातें क्या करनी है, असल में एक्सपीरियंस करने में ही मजा है। मैं आपको कितना समझाऊं आम ऐसा है वैसा है, अगर मैं आपको चखने के लिए न दूं तो उसका उपयोग ही क्या है। तो चलिए ये कनेक्शन कैसे बनाया जाता है ईश्वर के साथ और उसको मेंटेन कैसे करें, ये अनुभूति ही ले लेते हैं। तो तैयार हो जाइए, पीठ आप रेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ये 10-15 मिनट का जो प्रोसीजर है वो आप बड़े आराम से कंप्लीट कर सके। तो चलिए आपके पैर बड़े ही सहज स्थिति में रखिए ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। मेडिटेशन का ये उसूल आप ध्यान में रखिए, अगर बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट है तो आप वैसे भी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली कंफर्टेबल पोस्चर लेना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आलती पालती मार के ही बैठना पड़े या पद्मासन में ही बैठना पड़े या विशिष्ट आसन चाहिए, नहीं, आप आपके कंफर्ट के अनुसार रखिए। आप कंफर्टेबल होंगे, शरीर कंफर्टेबल होगा तो मन ना विचलित नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो गया तो ये मन तो वैसे भी बहुत ही चंचल है, उसको एक बहाना मिल जाएगा। तो चलिए क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। आपका शरीर थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, शिथिल होने दीजिए। 2-3 सांसें आप लीजिए, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई श्रम नहीं होना है। जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं आपका शरीर शिथिल होता हुआ आप महसूस कीजिए। सारे मांसपेशियां, सारे मसल्स ढीले ढीले करते जाइए, हाथ के, पैर के, पीठ के। जब तक कि पूरा शरीर विश्राम की स्थिति में ना आ जाए, आप हर सांस छोड़ते हुए कॉन्शियसली शरीर को ढीला ढीला करते जाइए, विश्राम की स्थिति में ले आइए। अब उस सर्वव्यापी ईश्वर को आप जिस भी स्वरूप में देखना चाहे उस स्वरूप को आपकी आंखों के सामने लेके आइए। अगर आपका विश्वास किसी संत, साधु, गुरु पे है तो आप उनका चेहरा सामने ला सकते हैं, जिससे आपका कनेक्शन हो, जिसके प्रति आपके भाव हो, भक्ति हो, ऐसा चेहरा आपको सामने लाना है।
स्वागत करना है, हाथ पकड़ के में उनको आमंत्रित करना है, तो आदर सहित एक आसन आपको प्रस्तुत करना है बैठने के लिए। हमेशा से हमारी ये चाहत रहती है कि हमारा आराध्य अगर सच में जीवित शरीर में आ जाए तो हम कितना सारा कुछ कह सकते हैं उनसे। तो इसी तरह से अभी ये मौका है कि आप उनको उस सजीव अवस्था में देखिए, उस देह स्वरूप में देखिए, और जो भी भक्ति भाव आपके मन में है, आदर है, व्यक्त करना है शब्दों में, संकोच ना कीजिए। जो भी हर्ष है, आनंद है आपके मन में, वो बिना संकोच आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन यहाँ जैसे किसी मित्र से बात आपको सहजता महसूस होती है, हर्ष महसूस होता है, आनंद आता है, उसी तरह से सारे छोड़ के आपको ईश्वर से, जिसको आपने एक फॉर्म में देख रहे हैं आप, उससे संपर्क यानी उससे संवाद साधने का प्रयत्न कीजिए। जीवन के हर विषय पे आप उनसे बात कर सकते हैं। हर विषय जो मत है, अपना ओपिनियन है, वह उनको बता सकते हैं। आपकी कोई समस्या है तो आप उनको वो व्यक्त करके, एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। जो भी आपकी व्यथा है, जो भी आपकी चिंता है, वो आप अच्छे से खुल के उनको बताइए। अभी तो वो साक्षात आए हुए हैं। किसी भी चीज की व्यथा हो, चिंता हो, दुविधा हो, कोई आपको फ्रीली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये अभी मौका लीजिए और बिना संकोच सब कुछ एक्सप्रेस कीजिए। आपके मन में दबी हुई कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, वो भी आप उनको बता सकते हैं। यहां तक कि जो करंट इश्यूज है वो भी आप उनके सामने बोल सकते हैं। ये आदत हमें डालनी है कि सहजता से संवाद हो। जो संकोच हम मन में रखते हैं भगवान के लिए, वो सारा दूर हो जाए और एक मित्र की तरह हमें उनसे संपर्क करने में सहजता हो। फिर चाहे किसी की शिकायत भी हो तो भी आप निसंकोच उनके सामने बोल दीजिए। मन के मन में वो संवाद चलता रहे आपका। फिर चाहे आपके पति पत्नी से कोई शिकायत है, या आपके बॉस के प्रति कोई शिकायत है, आपके बच्चों के प्रति कोई चिंता है, वो खुल के आपको बात करनी है। हम हमेशा स्तंभित हो जाते हैं ईश्वर के सामने और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। आज ये संकोच हमें तोड़ना है। आज हमारा रिश्ता एक भगवान और भक्त का नहीं, एक मित्र का मित्र से होगा। उसमें वो खुलापन होगा, उसमें वो सहजता होगी, उसमें कोई भी संकोच
या किसी भी डर का एक कण भी नहीं होगा। जितना आप बोल सकते हैं उतना अच्छा है, उतना आप उनके ऊपर विश्वास रख रहे हैं। इसीलिए हर कुछ, सब कुछ जो आपके मन में है वो सामने रखना है। बात बात कीजिए मन के मन में। आपके जॉब के रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हो, आपके हेल्थ के रिलेटेड हो, जो भी है उनके सामने रखिए बिना संकोच। ऐसे जैसे बिल्कुल आप किसी बड़े ही क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हक से बात करनी है। किसी चीज को लेके आपको सलाह चाहिए, वो भी पूछिए। ईश्वर के प्रति हमारी जो सारी दूर हो जानी चाहिए कि ईश्वर बहुत दूर है, वो हम लोगों की नहीं सुनता है, वो कभी कभी सुनता है, या फिर जो हमारे कर्मों के लिए हमें सजा देता है। ऐसी सारी जो गलत धारणा है वो आज बह जानी चाहिए, वो आज दूर हो जानी चाहिए। वो हमारे भी करीब हमारे पास है। हम जितना अपने प्रति प्रेम नहीं रखते उतना वो हमारे प्रति प्रेम रखते हैं। सबसे ज्यादा करीबी वो है, सबसे ज्यादा विश्वास जिनका है तो वो ईश्वर है। हमारे ओर से सारा संकोच निकलना चाहिए, सारा डर भगवान के प्रति जो है वो दूर हो जाना चाहिए और एक सहजता इस रिश्ते में आनी चाहिए। सारी बातें आपकी तरफ से अगर हो जाए तो 2 क्षण लेके आप देखिए कि इस जिस प्रतिमा को आप ये बात कर रहे हैं, जिस फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं, उनसे आपको क्या जवाब मिल रहा है। आपके मन के शंकाओं को दूर रखते हुए उधर से क्या सुनाई देता है, जो भी सुनाई देता है आप ग्रहण कीजिए बिना डाउट लिए, बिना कोई शंका लिए। जैसे कि प्रत्यक्ष किसी मनुष्य से ही बात हो रही है आपकी और वो जवाब दे रहा है आपको। इसको 2 वे कन्वर्सेशन बनाइए, दोनों ओर से संवाद हो रहा है। कोई शंका ना लीजिए कि जो दूसरी तरफ से आ रहा है वो मेरा मन बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है। जो भी कुछ है पहले रिसीव तो कीजिए। संवाद जारी रखिए। ये बोलना और ये संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है। हम अगर ईश्वर से ही संकोच रखेंगे तो कहाँ जाएंगे। जब हम मनुष्यों से इतनी सारी बात कर सकते हैं तो ईश्वर से क्यों नहीं। और इसीलिए ईश्वर को एक मनुष्य फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बातें जारी रहे। उधर से जो कुछ भी आ रहा है वो सुन के वो दिल में रखिए, कोई शंका ना ले।
आप दिल से बात कीजिए, उधर उधर से भी दिल से ही जवाब आएगा। इस क्षण, कुछ क्षण मन को दूर रख देते हैं, लॉजिकल माइंड को हम दूर रखेंगे और बहुत ही सहजता से हम कन्वर्सेशन में हिस्सा लेंगे। हमारी ओर से हम सारा जो मन में है वो इस ईश्वर को हम बता रहे हैं, जो भी हमने मन में एक फ्रेंड की तरह उन्हें बुलाया है, उनसे बात कर रहे हैं और उधर से जो भी आ रहा है वो हम बिना शंका के रिसीव कर रहे हैं। अगर आपकी सारी बातचीत जब पूर्ण होती है और उधर से भी जवाब सब आ चुके हैं, तब हम ये संवाद पूर्ण करेंगे। कुछ कहना बाकी रहा है तो आप वो कहने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ नहीं रहा है तो बस हाथ में ईश्वर का हाथ लेके अपना प्रेम, अपनी भक्ति उन तक पहुंचने दीजिए और बोल के दिखाइए कि आप कितना स्नेह रखते हैं उनके इस रूप से। कितनी भक्ति आपको महसूस होती है जब भी आप इस रूप के भजन सुनते हैं या इस रूप के दर्शन करते हैं। आप प्रत्यक्ष बात कर सकते हैं और मन ही मन में बहुत सारा धन्यवाद भी देना है। वो कि बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर कि आपने मेरी इतने इमीडिएट पुकारने से भी आप आए हैं और आपने मेरी सारी बातें सुनी हैं और उसके जवाब भी दिए हैं। लेकिन बातचीत खत्म, आप प्रॉमिस करना है ईश्वर से कि आप ये संपर्क बरकरार रखेंगे, अब ये टूटने नहीं देंगे। रोज इस हॉटलाइन से बातें होंगी, रोज दिन भर का जो भी कुछ घटा है वो रात को सोने से पहले अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर किए बगैर, उनको बताए बगैर आप दिन पूरा नहीं समझेंगे। जितना ज्यादा इजीली ये संपर्क स्थापित होगा और जितना से ये संवाद होगा, उतनी सहजता से आप ईश्वर से सारा गाइडेंस रिसीव कर पाएंगे, सारा मार्गदर्शन, सारा आश्वासन उधर से आपको मिलता जाएगा। बस संकोच, भय और शंका, ये तीन चीजों को आपको दूर रखना है। जब भी आप ये ध्यान करें, जब भी आप ये संवाद कर रहे हैं, ये तीन चीजें आपको मन से दूर रखनी है। आखिरी बार ईश्वर को प्रणाम समेत और उनको जाने की अनुमति दें। अगली बार आप पुकारेंगे और वो आएंगे, ये वादा लेना है, ये वचन लेना है और ईश्वर को भी वचन देना है कि आप संपर्क अभी विस्थापित ना होने देंगे। अब ये संपर्क बंद नहीं होगा। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आइए। धीरे धीरे अपने शरीर की अनुभूति होने दीजिए। हाथ पैर की उंगलियों को हिलाइए ताकि शरीर में रक्ताभिसरण यानी सर्कुलेशन प्रस्थापित हो जाए, आपको शरीर की अनुभूति हो।
फिर दोनों हाथों को आपको एक दूसरे पे घिसना है धीमे से, और आंखों पे रखना है, चेहरे को लगाना है, कान को लगाना है, ताकि सारे हमारे जो सेंसेस थोड़े मंद हो जाते हैं ध्यान में, वो वापस से कार्यरत हो जाए, वापस से एक्टिव हो जाए। मैंने हमेशा गुरुजी से पूछा है कि आपकी पूजा कैसी होती है। ही डजंट बिलीव इन एलैबोरेट, बहुत जैसे ना जोर शोर की पूजा, उनके रोज की पूजा वैसी नहीं होती है, बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही डायरेक्ट होती है। कहते मेरी पूजा पूजा नहीं होती, वो कम्युनिकेशन होता है। नहीं तो हमारी पूजा, अगर आपने ध्यान, अगर आप थोड़ा याद करें तो कैसी होती है, हमारा सारा ध्यान इधर उधर बटा रहता है, फूल कहाँ है, पानी कहाँ है, प्रसाद कहाँ है, वो पोछने का कपड़ा कहाँ है, और इस सब में हमारे भाव पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो कहते हैं जितना भी मैं कर रहा हूं मेरा कम्युनिकेशन ऑन रहता है, मेरा मन से मैं बात करता रहता हूँ ईश्वर से। जब कि मैं फूल चढ़ा रहा हूँ तब भी बात होती है, मैं उनकी फोटो साफ कर रहा हूँ तब भी मेरी मन से बात होती रहती है। ऐसा एक क्षण भी नहीं होता है कि जब मैं संपर्क में नहीं हूं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं भी ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास ना करने वाली हूँ, तो मुझे ये इस तरह की पूजा बहुत मन को भा गई कि ये दिल से दिल तक का संवाद है, ये रिचुअल्स नहीं है, यहाँ पे ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं बट रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट संपर्क हो रहा है। तो आज से अगर आप भी पूजा कर रहे हो तो पूजा की शुरुआत से ही हाय हेलो से होनी चाहिए। हेलो जी भगवान, आप ये क्या कर रहे हो, आज क्या हो रहा है। तो जैसे एक आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपको उसी तरह से बात करते करते उनकी पूजा करनी है। प्रसाद रखा है तो भी बोलना है कि भगवान आज सिंपल सा ही प्रसाद रखा है, आप इसी को खा लीजिए, कल अच्छा बनेगा तो वो भी रख दूंगा। कभी कभी उनके न, आप ये भी बोल सकते हैं आज ये मेरा फेवरेट प्रसाद है भगवान जी, आप भी चख के देखिए। ईश्वर किस सहजता से गुरुजी ईश्वर से बात करते हैं, वो देख के मेरे आंखें भर आती थी। सामने वो मूर्ति नहीं है, वो एक्चुअली है। और ऐसे हम लोग नवरात्रि मनाते थे और प्रसाद बनता था, अदरवाइज रोज एलाबोरेट प्रसाद नहीं बनता है, जो भी है वो रख देते हैं गुरुजी। नहीं तो ना खड़ी शक्कर है, चीनी है, वो रख देते हैं। ऐसे कोई उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है कि रोज ऐसे ही होगा। तो मैं आपको बात बताती हूँ, शंका, मैंने कहा ना चीजें हमें, जब भी हम भगवान से संपर्क में है, 3 चीजें आप याद से दूर रखिए। पहला तो संकोच, कोई संकोच नहीं, दिल खोल के बोलना है। कोई भी कितनी भी चीप डिजायर हो, फिर भी भगवान से आपका हक बनता है। आप उनके बच्चे हो, आप बताना है, आप उनके फ्रेंड हो, आपको उनको बताना है। आप ये मत करो कि ये कैसी बात मैं भगवान से बता सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकते, वो वैसे भी अंदर से सुन ही रहे ना, आपके अंदर से देख ही रहे ना आपको क्या चाहिए, और आप उनसे आपका मन कहाँ छुपा है। तो ये तो बस बताने की व्यक्त हो जाइए। आप मत सोचिए कि ये चीप है, अच्छी है, बुरी है, गंदी है। आपको बस बात करनी है, और जो है दिल में वो बेधड़क बोलना है। तो पहले संकोच नहीं होना है, डर नहीं होना है कि मैं ये सब बता रहा हूं, पता नहीं ईश्वर क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, उनको तो हर एक के मन की। लेकिन आप उसमें फायदा यह है कि जब आप कुछ भी बताते हो, शेयर करते हो, उधर से रिएक्शन आता है और आपको वही गंदी चीज हैंडल करने की हिम्मत मिलती है। मैंने पूछा था गुरुजी से कि मुझे तो बड़ा संकोच होगा भगवान जी को ये बताते हुए कि मुझे उस दिन ना मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छा ड्रेस पहना था, बहुत सुंदर लग रही थी ना, तो मुझे बड़ी जेलसी हो गई। तो कहते हैं क्यों नहीं बताना है भगवान जी को, क्यों नहीं बताना ईश्वर को, ये वैसे भी उनको पता ही है। आप बताओगे तो उधर से आपको शक्ति मिलेगी, उधर से आपको विजडम मिलेगा, और आप उस इमोशन से बाहर आ जाओगे। एज सिंपल एज दैट। बहुत लोगों को शंका रहती है कि भगवान से क्यों बात करनी है। भगवान से बात इसलिए करनी है कि आपको उसकी जरूरत है, आपको उस आधार की, उस ऊर्जा की, उस पॉजिटिविटी की जरूरत है। अगर आप हर कुछ मन में दबाए रखे हैं तो वो आपको करप्ट करेगा, वो आपको अंदर से खराब कर देगा।
एक बार आपने बोल के तो देखिए आप भगवान से सारी बातें, कुछ भी नहीं छुपाना है, और कितना हल्का लगेगा, क्योंकि ये बोझ ले लेके हम जीते हैं, वो अंदर से हमें खराब कर रहा है, हमारा व्यवहार उससे खराब हो जाता है और सब कुछ उससे बिगड़ता जाता है। नहीं, भय नहीं, कोई भय की आवश्यकता नहीं है। भगवान कोई गली का गुंडा नहीं है जो आपकी गलतियों की सजा दे, नहीं। यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आप क्लियर समझ लीजिए, भगवान सजा नहीं देता है, हम खुद को सुधरने का मौका देते हैं। भगवान कहीं में भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो पाप पुण्य की बातें होती हैं या भगवान से डरो वाली बातें होती है, नहीं, अपने कर्मों से डरो। ये गुरुजी ने कहा है, गुरुजी नौशीर का पेटेंट वाक्य, अपने कर्मों से डरो, भगवान से भी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या करता है? भगवान तो साक्षी है। आप गलती करो तो देखता है वो, अच्छा करो तो भी देखता है। वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ, हेल्प करेगा, अगर आपको सुधरना है तो हेल्प करेगा। वो सिर्फ देखता नहीं रहता है, लेकिन हेल्प मांगनी पड़ती है। जो मांगेगा उसको मिलेगा, इसीलिए संपर्क चाहिए। आप समझ में आ रहा है कि ये क्यों गुरुजी ने हमें ये टूल दिया है, ये पद्धति दी है, ताकि हम हक से हेल्प मांग सके, अपने मन की बात बता के अपना बोझ हल्का कर सके, सारा तनाव निकल जाएगा आपका। अगर आपने ये संवाद साधना सीख लिया तो, जैसे एक दोस्त से बात करके तनाव दूर हो जाता है, लेकिन वो मनुष्य बेचारा, वो क्या करेगा? उसमें उतनी ऊर्जा कहाँ है कि आपको उठा सके। आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बाद में वापस वो चिंता आ जाएगी। आप ईश्वर से संपर्क करके देखिए, आपको वो वापस फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि एक बार वो ले लेते हैं तो वो वापस नहीं देते हैं। लेकिन ये रोज होना चाहिए। ये रोज होता नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में इतने फंस गए हैं कि 5 मिनट के संवाद के लिए भी हमें टाइम नहीं है। तो पूजा का ही टाइम निकाल लो, या ड्राइविंग करते वक्त बात कर लो, या चलते हुए वॉक करते हुए बात कर लो। वैसे भी आजकल कोई पागल नहीं समझता है। पहले जमाने में अगर ऐसे बात करते बड़बड़ाते जाते तो लोग पागल समझते। आजकल वो ब्लूटूथ स्पीकर लगे रहते हैं, ऐसे वैसे ही बड़बड़ाते जाते हैं लोग। आजकल किसी को आश्चर्य नहीं होता है, तो लोग समझेंगे कि आप किसी से बात कर रहे हो। बात करना जरूरी है, संपर्क करना जरूरी है, फिर तभी उससे क्या फर्क पड़ता है ये महसूस होगा। अभी से मैं आपको क्या बताऊं। तो डर नहीं, संकोच नहीं और शंका नहीं। मन हमारा ना, ये बड़ी गंदी आदत है मन की, हर चीज में शंका आती है कि भगवान सुन रहे हैं, या वो जो जवाब दे रहे हैं वो सही है, या मेरा माइंड ही प्ले कर रहा है मेरे से। करने दो ना, इनिशियली शायद आपका मन ही आपके साथ छल करे, खेल करे, करने दो। धीरे धीरे जब अंदाजा आएगा तो अपनी बात और ईश्वर की बात में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस वाली बात है ना, ये प्रैक्टिस कर करके ही आएगी। तो रोज 5 मिनट इस कन्वर्सेशन को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपकी बार जो पूजा होगी वो मैकेनिकल नहीं होगी। वो फूल लगाते लगाते आप बोला भगवान जी आप ये वाला फूल, आप आज इसका आनंद वाली अगरबत्ती लाइए, आपको शायद अच्छी लगेगी, जैसे वो एक्चुअली है। वहां पे हमारा भाव कभी वो नहीं होता है, हमारे लिए वो फोटोग्राफी है। अगर ये भाव आ जाए तो मजा आ जाए, सच में आप बताती हूँ, इतना सहज है। और इसी को ही नहीं सिखाया जाता, इसी को ही नहीं ना प्रैक्टिस कराया जाता। इसलिए शायद मैंने लास्ट इसमें ये प्रैक्टिस ली थी, लेकिन फिर भी मैंने आज आपसे ये मेडिटेशन करवाया है, क्योंकि बार बार करने से ही वो संकोच निकल जाएगा और हम इजीली उस भगवान जी से, ईश्वर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। थोड़े क्वेश्चन आंसर्स है इस टॉपिक के ऊपर, वो क्या कहते हैं। हाँ, ये पहला ही वाला है। इज दिस ओनली माई इमेजिनेशन एक्चुअली कम इनटू पिक्चर? ये मेरा मन का ही खेल है या सच में भगवान जी आते हैं, ईश्वर आते हैं? तो गुरुजी बोल रहे हैं द कनेक्शन इज ह्यूमन माइंड to universal mind, and yes, initially it will seem like a self guided meditation,
But with regular practice over a period of time, you will feel the form. You will also begin to perceive the form of God. तो गुरुजी बोल रहे हैं, ये आपके मन से भगवान के मन तक बात शुरुआत में ऐसे ही लगेगा कि आप ही बोल रहे हो और आप ही अपना अपना जवाब खुद को दे रहे हो, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको धीरे धीरे इसका फर्क मालूम हो जाएगा। ये करने के बाद एक अलग ऊर्जा, एक अलग पॉजिटिविटी दिखने लगेगी, एक अलग आश्वस्त फीलिंग आएगा। और कभी कभी तो ऐसी आइडिया आ जाएगी सही फिट होती है तो आपको विश्वास ज्यादा बैठेगा, लेकिन तब तक शंका ना लेते हुए संपर्क शुरू रखिए। हाउ विल आई नो और फील दैट प्रेजेंस? अब ये पूछ रहे कि मुझे कैसे चलेगा कि मैंने जिनको पुकारा है वो वास्तव में आए हैं और मुझे वो अनुभव कैसे होगा? तो ये doing this procedure you will feel very happy and that happiness is real happiness. में ऐसी खुशी हो जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप बस खुश हो, आप बस चेहरे से वो स्माइल जा ही नहीं रही है, वो मंद मंद स्माइल चिपक जाती है बिल्कुल, और उसकी कोई वजह ही नहीं रहती है। You will enjoy the feeling of joy which you will yourself identify as the presence. वो joy, वो एक अंदर राहत, वो एक एश्योरेंस, वही तो उनका प्रेजेंस है। और किस तरह से वो अपना प्रेजेंस आपको फील करवाए ईश्वर, आपको पीसफुल लगना, आपको हैप्पी लगना, आपको आश्वस्त लगना, यही तो उनके प्रेजेंस की निशानियां हैं। It's the same happiness you feel when you invite a loved one to spend time with you. तो कोई जैसे कोई आकाशवाणी जैसा होना अपेक्षित है क्या हम लोगों को? ये उसी तरह का आनंद है जिस व्यक्ति से मिलने के बाद, जो आपको बहुत प्यारा है, उनको मिलने के बाद जिस तरह से आपको हर्ष होता है, जिस तरह से आपको ऊर्जा मिलती है, जिस तरह से आपको खुशी मिलती है, बस उसी तरह की खुशी ईश्वर के प्रेजेंस में मिलती है। उसमें कोई कुछ बहुत आश्चर्य वाली या जो फिल्मी स्टाइल है वो वैसे होने की आशंका वो मन में मत रखिए। बिल्कुल नॉर्मल सी ही फीलिंग होगी, लेकिन वो अनुभूति होगी आपको। विल आई एक्चुअली रिसीव सम हेल्प इफ आई आस्क फॉर इट? क्या सच में भगवान मुझे मदद करेंगे अगर मैंने उनको ये विनती की कि आप मुझे मदद कीजिए? गुरुजी बोलते हैं सर्टनली, बिल्कुल। Some energy related to that form comes along which will help you. आप जिस भी फॉर्म को आपने पुकारा है, शायद हमारी पुकार इतनी ज्यादा नहीं है इंटेंसिटी में, लेकिन थोड़ी भी इंटेंसिटी हो गई उतनी ऊर्जा तो वो आ जाएगी। अपनी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कितनी ऊर्जा हम खींच के लाते हैं उस फॉर्म की। अगर आपने बहुत सारी इंटेंसिटी से वो पुकारा है तो उस ऊर्जा का बहुत सारा प्रभाव आपको दिखाई देगा। अगर नहीं भी, थोड़ी तो ऊर्जा आपकी पुकार सुन के जरूर आएगी। You will get a response since you have so lovingly and wholeheartedly invited this form of divinity to be with you. क्यों नहीं आएगी? इतने प्यार से, इतने मन से अगर उन्होंने आपको पुकारा है, आपने उन्हें पुकारा है, तो वो क्यों नहीं आएंगे? वो हमारा मन शंका खाता है, वो जरूर आते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, बच्चे जैसी विश्वास रखो, बच्चे जैसी ना श्रद्धा रखो। ये एक बड़ी सुंदर कथा है, मेरे ख्याल से वृंदावन की कथा है। वहां पे कृष्ण भगवान को 56 भोग लगते थे, 56 भोग, और ऐसे मानते हैं कि वृंदावन में सच में कृष्ण भगवान आके वो चखते हैं, वो खाते हैं। तो एक छोटा बालक जो भी घर में बना हुआ था वो प्रसाद लेके आता था, मंदिर के पुजारी को देता था कि आप ये भी चढ़ाओ भगवान को। तो उनको दुत्कारा जाता था, कुछ भी लेके आते, यहाँ पे 56 भोग लगे भगवान के। तो बच्चा कोई बात नहीं, आप वहां पे रख के वो चला जाता था। दूसरे दिन उसकी कटोरी खाली रहती थी। तो वो तो बड़ा खुश होता था कि भगवान जी ने मेरा प्रसाद खा लिया। किसी को विश्वास नहीं होता था, कहते ये 56 भोग छोड़ के भगवान के छोटा सा ये खाएगा? तो कहते हाँ सच में खाते, मैंने खुद देखा है उनको खाते हुए।
और एक दिन पुजारी देखता है कि वो कटोरी से प्रसाद गायब हो जाता है, और जबकि सब बंद है, किवाड़, तब उनको मन में सच्ची श्रद्धा हो और आशंका नहीं हो। बच्चे का मन किसी भी आशंका से परे होता है, हम बड़े मन खराब हो जाता है। तो अगर सच में आपने बिना शंका लिए अगर उन्हें पुकारा है तो वो आएंगे भी, उपाय भी देंगे, ऊर्जा भी देंगे, सब कुछ हो सकता है, इसीलिए शंका नहीं। एंड सून यू विल सी हाउ वेल यू आर गाइडेड और गिवन सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। आप अगर लगातार संपर्क कर रहे हैं तो भगवान मदद जरूर करेंगे, एक दिन करेंगे। शायद आपकी इंटेंसिटी को परख रहे हैं, शायद आपके लिए इच्छा हो रही है। कैन आई जस्ट टू द फॉर्म इन साइलेंस? किसी ने पूछा है कि ऐसा ध्यान करते करते मुझे कुछ बात नहीं करनी है, मुझे कुछ प्रश्न नहीं है, मुझे बस ईश्वर के साथ साथ बैठ के वो आनंद लेना है उनकी ऊर्जा का। क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ? गुरुजी बोलते बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। बट अनलेस यू आर रियली गुड एट मेडिटेटिंग, यू रन अ रिस्क ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड स्नैपिंग द कनेक्शन। लेकिन इसमें खतरा एक है कि आप साइलेंटली बैठे हैं ना, आपका मन भटक जाएगा, वो इधर उधर के थॉट्स आएंगे और आपका विस्थापित हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसलिए अगर आप बातचीत में आपका मन लगा है तो वो संपर्क बना रहेगा। तो आपके ऊपर है, अगर आप से इतना साइलेंटली भी संपर्क कर सकते हैं तो ठीक है। जिस वक्त आपके विचार शुरू हो जाएंगे, समझिए कि आप खत्म हो गया। नहीं तो आप बातचीत में समय बिताइए, बिल्कुल जैसे सामने वो साक्षात मनुष्य फॉर्म में, मनुष्य स्वरूप में आके आपकी बात सुन रहे हैं। Can this procedure be done by inviting formless divinity without giving a face and shape, or maybe just imagining a bright orb of light? क्या ये बिना मनुष्य का रूप दिए हुए निर्गुण ईश्वर को बुला सकते हैं? गुरुजी बोल रहे बिल्कुल बुला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगेन, जैसे साइलेंटली उनके साथ बैठना जैसे मुश्किल है, वैसे ही किसी ना रूप को, इसका कोई रूप नहीं है, उसको इमेजिन करके उसको पकड़ के बैठ, एक क्षण इमेजिन करना प्रकाश इजी है, लेकिन उस फीलिंग के साथ बात करना, प्रकाश के साथ बात करने में भाव नहीं आते हैं। आप प्रकाश को देख सकते हैं, आप प्रकाश से भक्ति नहीं कर सकते, आपको इमोशंस नहीं फील होंगे, और इमोशंस आर पावरफुल बॉन्ड। वो कनेक्शन बनाता है, वो कनेक्शन पक्का करता है। नहीं तो आप किसी भी व्यक्ति को आप प्रकाश स्वरूप देखो, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। उसके फॉर्म से, उसके बोलने के हाव भाव से, उसके व्यक्तित्व से आप प्यार करते हो। अगर वो प्रकाश होता तो कहाँ, प्रकाश नाम का व्यक्ति नहीं, हाँ, प्रकाश यानी लाइट, उस लाइट से आप कैसे प्यार कर सकते हो? तो ये भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर उसको कोई फॉर्म दे दिया, इसीलिए गुरुजी ने वहां पे भी कोई बंधन नहीं रखा है। ये जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर का ही फॉर्म सामने रखो, आप जिस व्यक्ति में भी ईश्वर को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, कोई भी अच्छा व्यक्ति, कोई भी ना पायस एंजेलिक फॉर्म भी आप सामने रख के बात कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको कृष्ण, राम या ना देवी या गणेशा को ही देखना है, नहीं, कोई बंधन नहीं है। ओके, सो किसी ने पूछा है इजंट इट सेम एज प्रेइंग? क्या ये प्रार्थना ही है किसी तरह की? तो गुरुजी बोल रहे नहीं, ये प्रार्थना नहीं है, क्योंकि प्रार्थना को एक तैयार मॉड्यूल दिया रहता है कि इसी तरह से प्रार्थना करनी है। यहाँ पे कोई मॉड्यूल नहीं है, आप आपके मन से आप आपकी बातें कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसे ना रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। प्रार्थना के थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए रहते हैं। तो गुरुजी बोल रहे लेट मी शेयर समथिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। डू दिस प्रोसीजर एज ऑफन एज पॉसिबल, इवन सेवरल टाइम्स अ डे if you have the time, then it will become an effortless and constant mental exercise. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि जो ये पद्धति है उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए दिन में बहुत बार आप संपर्क कीजिए भगवान से, बहुत बार आप उनसे मन से बात कीजिए, जब तक कि ये नेचुरल ना बन जाए। नेचुरल मैंने इतना सहज कि आप आंख बंद कर दी और आपका कनेक्शन ऑन।
You will see a big difference this will make in your life. Treat this form like a shadow and it will follow you every minute and every second. जैसे कि भगवान आपकी परछाई है, हर जगह जैसे परछाई आपके साथ जाती है, आपका ईश्वर आपके साथ चलेगा, आपके साथ जाएगा, आपके साथ सोएगा, आपके साथ उठेगा, आपके साथ खाना खाएगा. उसको इतना साथ में रखिए. लेकिन जैसे मैंने कहा, ये कोई सिखाता नहीं है बचपन से. शायद हमने बचपन से सीखा होता तो हम भगवान को इतना दूर नहीं महसूस करते, जबकि वो इतना पास है. लेकिन हैबिट छूट गई है तो आज हम उसको इतना दूर फील कर रहे हैं. उसको हमेशा पास में जानिए, पास में रह के बात करना शुरू कर दीजिए, फिर आपको महसूस होगा. You will be taken care every moment because the gardener who planted you in his garden is all powerful and he will never neglect a single plant in his garden. ये बहुत टचिंग है. ये बहुत ही इमोशनल बात बोली है गुरुजी ने. अगर ये आपको दिल में महसूस हो गई, अगर ये आप रोज रिपीट कर करके इसको आपने सत्य बना दिया, आपको कभी किसी चीज से डर नहीं लगेगा. ये है, ईश्वर ऐसा माली है जिसके बाग में हम सारे फूलों की तरह, पेड़ पौधों की तरह है. सो जिस तरह माली की नजर हर पेड़ पौधे के ऊपर होती है, घास का एक पत्ता भी अगर सूख रहा है तो माली की उस पर नजर रहती है. तो जिस माली गार्डन में लगाया है वो कभी भी हमें निग्लेक्ट नहीं करता. ये अटूट विश्वास हमें रहना है. सो आई एम रिपीटिंग इट. आप आंखें बंद करके इसको सुनिए, इसको महसूस. You will be taken because the gardener who planted is all, and he will never neglect a single plant in his garden. You will know all this by practice. किसी ने अपना अनुभव यहाँ पे बताया है. थैंक यू गुरुजी फॉर शेयरिंग सच ए मिराकुलस टेक्निक्स टू कीप इन टच विथ गॉड. आई ट्राइड दिस मेथड लास्ट नाइट एंड truly I had miraculous experience. I sat alone in a room, closed my eyes and did Soham for 2 minutes. I invited my beloved Guru to come and talk to me. I repeatedly invited him, kept repeating several times. Suddenly, I felt something happening around my ear, the sound of wind coming, and I heard my heart beating like a hammer. This was the I heard my heart beat so loudly. I was totally afraid. I asked my Guru to please help. I was scared and asked him not to scare me like this. I could not hold myself in that position. With fear, I opened my eyes. A few seconds and continued with the steps given by you. And then I spoke to my Guru for more than 15 minutes. I kept talking to him and waiting for response. At first, I did not receive any response. Finally, I stopped talking from my side and waited for his response. After a couple of seconds, I heard the astonishing sound answering my questions. I really felt joyful, blessed while listening to the answers. Lastly, I thanked my Guru for being with me. I thanked you for being with me. That night, I had very good sleep and with lot of joy and harmony in my heart, I slept. The only thing in this experience that I initially got scared. मेरे ख्याल से ये एक प्रमाण है कि किस तरह से हमें एक्सपीरियंस हो सकता है अगर हम सिंसियरली ये टेक्निक फॉलो करें और थोड़ा पेशेंस और बिना डरे अगर हम इस मेडिटेशन में रहे तो कुछ न कुछ महसूस जरूर होगा. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है.
इफ एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, ये मैं क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ, थोड़ी देर हो गई है फिर भी ये ले रही हूँ क्योंकि ये हमारे मन में कहीं ना कहीं आशंका उपस्थित करता है. इफ एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, then how are we creators of circumstances? It needs actions. But if I don't act and it's written in my blueprint, will it not come true? तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि सब कुछ अगर प्री डिटरमिन्ड है, पूर्व नियोजित है, तो फिर हम हमारी नियति बनाते हैं, ऐसे क्यों कहा जाता है? Why it is called we are the creator of our destiny, जबकि सब पहले से ही तय है. और दूसरा प्रश्न है कि एक्शन क्यों जरूरी है, कि मुझे कुछ करना क्यों जरूरी है? अगर मेरे नसीब में लिखा है तो वो अपने आप से होना चाहिए. तो देखते हैं गुरुजी क्या आंसर करते हैं. ऑल ऑप्शंस बिफोर यू आर प्री डिटरमाइंड, यानी आपके सामने जो भी पर्याय आएंगे वो पहले से निश्चित है. एंड सो इज द आउटकम ऑफ द वेरियस चॉइसेस दैट यू मेक. सिर्फ पर्याय ही सुनिश्चित नहीं है, उसका परिणाम भी सुनिश्चित है. द ओनली एरिया वेयर फ्री विल प्लेज अ रोल एंड वी फील वी क्रिएट अवर सर्कमस्टेंसेस इज इन चूजिंग वन ऑफ द ऑप्शंस बिफोर अस. तो यहाँ पे हमारी जो चॉइस है, हमारी एक्शन या हमारा चॉइस को क्या बोलते हैं, चुनना, मैं कौन सा पर्याय चुनती हूँ, उस पर्याय के अनुसार जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा परिणाम होगा जो पहले से ही निश्चित है, बस मेरी चॉइस में ही मेरी एक्शन छुपी हुई है, या मेरी फ्री विल, यानी उतना ही मुझे अलाउड है, बाकी सारा पूर्व नियोजित है. चॉइसेस भी पूर्व नियोजित है, यानी ये जो 4-5 रास्ते मेरे सामने आएंगे वो भी पूर्व नियोजित है, उन पे जाके जो परिणाम होगा वो भी पूर्व नियोजित है. मेरे हाथ में बस इतना है कि मेरी अपनी बुद्धि, मेरी पर्याय या कौन सा रास्ता चुनती हूँ और उस रास्ते के हिसाब से कम ज्यादा परिणाम भोगती हूँ, बस उतना ही मेरे हाथ में है. यानी बेस्ट और वर्स्ट ऑप्शंस हमारे प्रारब्ध में रहते हैं. हमारी बुद्धि, हमारे भावनाएं, हमारे कहते हैं विजडम, इंटेलिजेंस, ये सारी टेस्ट होती है कि हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं और वो बेस्ट फ्रूट पाते हैं, या वर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं और उतना खराब परिणाम पाते हैं. ऑप्शंस और सारे परिणाम निश्चित है. द आउटकम, एज आई सेड अर्लियर, इज प्री डिटरमाइंड. So in a limited sort of way you do create your own circumstance choice. So थोड़ा बहुत हम अपने circumstances influence करते हैं, worst या best या in between options choose करके. इसीलिए we create destiny बोला जाता है, जबकि सारा पूर्व नियोजित है, लेकिन उसमें भी अपनी चॉइस खराब परिणाम पाना है या अच्छा परिणाम पाना है, वो चॉइस हमारे हाथ में है और वो परिणाम हम चुनते हैं या हम क्रिएट करते हैं. अब शायद थोड़ा क्लियर हो रहा है. सो इन अ लिमिटेड सॉर्ट ऑफ वे यू डू क्रिएट योर ओन सर्कमस्टेंसेस विथ योर चॉइसेस. एवरीथिंग एल्स विच इज नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइस इज इन योर ब्लूप्रिंट एंड विल कम इनटू योर लाइफ. सो बाकी का सहारा सुनिश्चित है, फिर आप चाहे कुछ करें या न करें वो आपके सामने आ जाएगा. ऑल्सो द ब्लूप्रिंट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट एट मोस्ट टाइम्स वी आर पुश्ड बाय सिचुएशन एंड एक्सटर्नल कंडीशंस टू मेक सर्टेन चॉइसेस विच वी रिग्रेट इन हाइंडसाइट. तो भले ही हमें लगे कि हम एक्शन नहीं लेना चाहते, फिर भी वो परिस्थिति, हमारी भावनाएं या कभी कभी आसपास का जो प्रेशर बनता है वो हमें फोर्स करता है, दबाव डालता है कि हम कोई चॉइस ले, जो शायद हम बाद में पछताए भी, लेकिन वो चॉइस लेने के लिए हमें क्या कहते हैं, बद्ध किया जाता है. वो कंपल्सरी वो एक्शन लेने में कहते हैं ना, हमको करना ही पड़ता है, वो कंपल्सरी. हम वहां पे नॉन एक्शन फोर्सफुली सही, प्रारब्ध हमसे वो करवा लेगा. But those unsavory experiences or painful events of our lives are good for our growth and karmic workout.
लेकिन जहाँ पे ये कंपलसरी होता है वहां पे हमारे सारे कर्म कट जाते हैं, हमारा सोल कुछ सीखता है, सो बुरा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली इट इज फनी बट मोस्ट चॉइसेस वी मेक टीच अस द सेम लेसन बट इन डिफरेंट वेज। तो ये शायद एक ऐसा मजाक हम अपने साथ ही करते हैं कि हम कितने भी चॉइसेस ले, लेकिन वही जो कहते हैं ना पाठ पढ़ना है वो हम अलग अलग तरह से पढ़ते जाते हैं। तो डेस्टिनी इज वेरी ब्यूटीफुल, आगे का चैप्टर ही वही है। तो स्टे विथ मी, सी यू ऑन फ्राइडे, डोंट मिस दिस, क्योंकि ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये लाइफ का गेम कौन खेलता है, और जिस तरह से गुरुजी ने ये समझाया है वो माइंड ब्लोइंग है, वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। एक बार आपने ये गेम समझ लिया तो समझो गलतियां कम, मजा ज्यादा और बहुत सारी प्रगति। तो अगले इस कमिंग शुक्रवार को मिलते हैं और टॉपिक है नेविगेटिंग थ्रू लाइफ ब्लूप्रिंट। तो इस प्रारब्ध से कैसे गुजरना है, इस नियति के साथ कैसे हम लोगों को जीना है, वो हम सीखेंगे अगली बार। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, मिलते हैं शुक्रवार को। नमस्कार।